Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we will be discussing about second terminal examination 2020, which means which chapter are coming in our second terminal examination. Okay, and what is the question pattern? Huh? So these things. Okay, so good morning, class 5 students. आज हम लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस प्रकार है। सो आप लोग तैयारी कीजिए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 लोगो, जो कि हम लोग का अधूरा रह गया था। सो विल हम लोग चैप्टर नंबर 7 लोगो को भी देखेंगे, राइट। सो विल आल्सो रीड द चैप्टर नंबर 7 दैट इज लोगो। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Okay, students, now open your book, page number 4, that is content section. So open your book, page number 4, content section. Open this page, ये वाला पेज खोलिए। इसके बाद chapter number 5, chapter number 6 and chapter number 7, these three chapters are coming on your second terminal examination. 5, 6 और 7, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों चैप्टर सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन अरेंजमेंट, कैसे क्वेश्चन अरेंज्ड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन विल बी राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखने हैं। थर्ड में मैच द फॉलोइंग। फोर्थ में रीअरेंज द लेटर्स। फिफ्थ में राइट द कमांड। सिक्स्थ में राइट द लोगो कमांड टू ड्रॉ द फॉलोइंग। सेवेंथ में राइट द आउटपुट। एट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो ये होगा पैटर्न, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 70, टोटल मार्क्स होगा 70 का। ठीक है, सो लेट्स रीड द चैप्टर। चलिए देखते हैं चैप्टर अपना जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 लोगो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने इसमें पिछली जो वीडियो क्लास है उसमें हम लोगों ने देखा था पेन अप, पेन डाउन, पेन इरेज, हाँ यहां तक देख लिया था। हाँ, हाइड टर्टल, शो टर्टल, रिपीट कमांड, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। प्रिंटिंग ए नंबर्स, ये सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हाइड टर्टल, ओपन पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 खोलिए। हाइड टर्टल, HT कमांड। नाउ रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे बोलिए। हाइड टर्टल, HT कमांड। दिस कमांड विल हाइड, repeat after me everyone, this command will hide the turtle from the screen. It means you cannot see the turtle on the screen, but it works as usual. Now turn to the next page. Now repeat command. It is used to repeat certain commands for the numbers of time mentioned in it. Okay, now we are typing FD and RT commands together and repeating them 4 times to get a square. Thus, a single repeat command replace many commands used repeatedly. Turn to the next page, page number 46. Print PR command. Print command is used to display a character, number, word
or sentence on the screen. The output of this command is displayed in the recall list box. This command takes only one input at a time, printing a number. We use the following commands to display a number: PR, number enter. Printing a word. We use the following command to display a word: PR, inverted comma, word enter. A word must be enclosed in double quotation marks. To type the double quotation marks, press Shift key with quotation key. Now turn to the next page, page number 47, printing a sentence. We use the following command to display a sentence: PR sentence enter. We can also use the same print command for doing calculation, addition, subtraction, multiplication, and division. Addition. The two commands we can use to add 10 and 20 are shown below. Subtraction. The two commands we can use to subtract 10 from 40 are shown below. Now turn to the next page, multiplication. The two commands we can use to multiply 30 and 5 are shown below. Division. The two commands we can use to divide 30 and 5 are shown below. We are not reading this, ना? हम लोग ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं, because we'll do this on the logo command. So that's why we are not reading this, okay? तो इसको हम लोग logo command में करेंगे, इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं. Now finish, okay? So students, let's see how these commands will work on logo command prompt. ओके सो कैसे इस कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोगो कमांड में, चलिए इसको देखते हैं. सबसे पहले हाइड टर्टल. इससे पहले सारे कमांड्स हम लोगों ने सीख लिए थे, जैसे कि पेन डाउन, पेन अप, ये सब सीख लिया था हम लोगों ने. पेन डाउन, पेन अप, पेन इरेज सीख लिया था. अब हम लोग हाइड टर्टल कमांड को देखेंगे. ठीक है, सो चलिए खोलते हैं लोगो कमांड. यह है लोगो हमारा. इसमें हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है. सबसे पहले क्या है, हाइड टर्टल, HT. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HT. HT का फुल फॉर्म है हाइड टर्टल. ठीक है, तो इसको जैसे HT लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, देखिएगा आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, मतलब टर्टल दिख रहा होगा, ये हाइड हो जाएगा. देखिए गायब हो गया. शो टर्टल कर लेते हैं. तो एक बार इसमें कमांड लिख लेते हैं, FD100 RT90 RT90 एंटर. FD100 RT90 FD100. देखिए यहां तक दिख रहा है. अब हम इसमें टर्टल को हाइड करेंगे. हाइड करने के लिए जो कमांड है वो है HT. कभी कभी ऐसा होता है हमको ये टर्टल दिखाना नहीं होता है, तो हम PE सी. यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने डिजाइन किया,
रेक्टेंगुलर शेप। गलती से ये आगे बढ़ गया था तो मैंने इसे बैक कर लिया। देखिए यहाँ पे बैक कमांड और पीई कमांड से मैंने इसको बैक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्टल दिखाई दे रहा है। इस टर्टल को अगर हम हटाएंगे तो रेक्टेंगुलर शेप क्लियरली दिखाई देगा। तो हमको कभी कभी जरूरत पड़ती है टर्टल को गायब करने की या फिर उसको हाइड करने की। तो चलिए कैसे करते हैं, HT कमांड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइप करेंगे HT इंटर। देखिए जैसे ही आपने HT टाइप किया आपके स्क्रीन से टर्टल गायब हो गया। यहाँ पे टर्टल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये टर्टल गायब हो गया मतलब हाइड हो गया, तो इसको शो करना है, इसको दिखाई देना है। दिखाने के लिए कमांड क्या है, ST मतलब शो टर्टल। आपको टाइप करना होगा ST शो टर्टल। ठीक है, जैसे ही मैं ST टाइप करूंगा स्क्रीन पर फिर से जो टर्टल है वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। टर्टल को हाइड करने का जो कमांड है वो क्या है, HT, राइट, HT। जैसे ही HT टाइप करके एंटर करेंगे टर्टल हाइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, 45 पेज नंबर, रिपीट कमांड। इन प्रीवियस क्लास मींस क्लास 4 में आप लोगों ने सीखा होगा रिपीट कमांड को के बारे में, राइट? हम लोगों ने रेक्टेंगल के लिए किया था, स्क्वायर के लिए किया था, ट्रायंगल के लिए किया था, सर्कल के लिए किया था ना। तो चलिए इसमें देखते हैं रिपीट कमांड का यूज करके। सबसे पहले टर्टल को शो कर लेते हैं, इसके बाद इसकी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर करने के लिए कमांड क्या है, CS क्लियर स्क्रीन, C फॉर क्लियर, S फॉर स्क्रीन। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड क्या है, CS। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा CS। जैसे CS लिख के एंटर दबाएंगे स्क्रीन पर सब कुछ गायब हो जाएगा। तो क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें कमांड टाइप करेंगे। चलिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं। रिपीट कमांड के लिए अगर हमको रेक्टेंगल बनाना है, नहीं सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए रिपीट 4 ब्रैकेट स्टार्ट FD 100 RT 90 ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्क्वायर बन गया। अगर इसी को हम लोग 200 करते, इसी को हम लोग 200 करते तो इस थोड़ा सा बड़ा बन जाता। जैसे कि ये देखिए, यहां पे देख रहे हैं कमांड रिपीट 4 FD 200 RT 90। देखिए ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना पिछले वाले से, राइट? तो क्लियर, समझ में आया कमांड। रिपीट कमांड का काम क्या है, रिपीट कमांड का काम है कि रिपीट कीजिए। हम आपको बता रहे हैं REPEAT रिपीट। रिपीट कीजिए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। क्या रिपीट करना है, रिपीट करना है आपको FD 100, आपको ये रिपीट करना है, और RT 90। ये दो चीजें आपको ये जो हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कि रिपीट कीजिए 4 टाइम्स FD 100। क्या करेंगे, FD 100 दैट मीन्स ये वाली लाइन एक टाइम्स खींचिए, फिर दूसरे टाइम्स फिर यही काम कीजिए, FD 100 RT 90 कीजिए। मतलब यहां से यहां तक लेके इधर मूव कर लीजिए एक टाइम्स, फिर दूसरे टाइम्स कीजिए यहां से यहां तक, फिर तीसरी टाइम कीजिए यहां से यहां तक, और चौथी टाइम कीजिए यहां से यहां तक। मतलब 4 टाइम्स रिपीट कीजिए इसी कमांड को। क्लियर? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, रिपीट 4 FD 100 RT 90 फॉर स्क्वायर। तो आपको लिखना होगा स्क्वायर डैश देके रिपीट 4 FD 100 RT 90 ऐसे करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए अब हम रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको लिखना होगा रिपीट 2 FD 100 RT 90 FD 200 RT 90, कुछ ऐसा। रिपीट 2 FD 100 RT 90 FD 200 RT 90। तो ये 2 टाइम्स रिपीट करना है इस कमांड को, इस पूरे कमांड को 2 टाइम्स रिपीट करना है। दैट मीन्स एक बार FD 100 कर लीजिए, आगे लेके जाइए, 90 कर लीजिए, फिर FD 200 कर लीजिए, फिर 90 लेके जाइए। तो ऐसे करके शेप एक बार बनेगा
और ऐसे करके शेप दूसरी बार बनेगा। ठीक है, देखिए ये रेक्टेंगल शेप बन गया। क्लियर? ओके, नाउ इसको लिख लेंगे आप लोग। रिपीट 2 FD100 RT90 FD200 RT90 इक्वल टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कमांड है ये। चलिए अब हम लोग सर्कल के लिए कमांड लिखते हैं। सर्कल से पहले स्टार के लिए लिखते हैं। रिपीट 5 ब्रैकेट स्टार्ट FD100 RT 120 आई थिंक इसका कमांड यही है। और सॉरी ये ट्रायंगल का कमांड है। कमांड ये ट्रायंगल के लिए है। ये है स्टार के लिए। रिपीट 5 FD100 RT 144 ये स्टार के लिए है। स्टार अगर बनाना हो तो आपको लिखना होगा रिपीट 5 FD100 RT 144, तो आप स्टार बन जाएगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, और अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको लिखना होगा रिपीट 5 FD100 RT 120। जब आपको ट्रायंगल बनाना हो, नॉट 5, रिपीट 3 लिखना होगा। सॉरी, रिपीट 3 FD100 RT 120। सी, रिपीट 3 FD100 RT 120। ठीक है, मैं ये सारे नोट्स आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सर्कल बनाते हैं। सर्कल के लिए क्या है? रिपीट 360 FD1 RT1 ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको हम वेट कर लेते हैं। इसको वेट करवा लेते हैं। वेट 2। देखें क्या ये काम करेगा? देखिए काम कर रहा है। ये वेट करते हुए धीरे धीरे इस पिक्चर को डिजाइन कर रहा है। तो ये 360 टाइम्स इसको रीड करेगा, रन कराएगा। ये FD1 RT1 को 360 टाइम्स रन कराया पूरा। सो क्लियर? यू गेट द पॉइंट? आपको पता चला ये सारी चीजें? तो यहाँ पे वेट डालने का रीजन ये था ताकि आप ये देख पाएं कि ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। क्लियर? समझ में आई आपको बात? एक बार फिर से कमांड देख लीजिए। रिपीट 360 वेट 2 FD1 RT1। इसको एनिमेशन मोड में देख सकते हैं हम लोग, ये धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्लियरली दिख रहा है? FD1 RT1 करते हुए आगे चल रहा है। Clear. Okay, now so let's see from our book. रिपीट कमांड हम लोगों ने सीख लिया। नाउ प्रिंट ए नंबर। अब नंबर कैसे प्रिंट करना है, मतलब किसी चीज को प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंट कमांड का फुल जो कमांड है उसका शॉर्ट फॉर्म है PR। आपको उसको PR लिखना होगा प्रिंट कमांड के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलिए इस पे चलते हैं। CS कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। PR 2015, और सॉरी मुझे स्पेस देना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कमांड करना है कैसे, PR 2015 ऐसा करके लिखा हुआ है, तो वैसे ही हम लोग भी लिख लेंगे PR 2015। तो देखिए यहाँ पे नीचे में प्रिंट करके दिखा रहा है। ये स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा, अभी यहाँ पर दिखाएगा। क्लियर टेक्स्ट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। PR 2015 जैसे मैं ये कमांड लिखेंगे, ये यहीं पर प्रिंट करेगा, यहाँ पर, नॉट हियर, यहाँ पर प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। PR जो हमने कमांड लिखा था 2015 वो यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर?
समझ में आया? तो कुछ भी आप चाहें तो यहां से प्रिंट कर सकते हैं। फिर से लिखेंगे पी आर माई, अगर आप कोई आई रीड इन क्लास 5, ऐसे पी आर आई रीड इन क्लास 5। देखिए यहाँ पे रीड कमांड को वो नहीं रीड कर पाया, आई तो वो रीड किया, उसके बाद ये रीड नहीं कर पाया। आपको ये पूरा एक वर्ड में लिखना होगा तभी होगा। आई रीड इन क्लास 5, सी ऐसे। एक एक वर्ड प्रिंट करने के लिए है ये, सेंटेंस प्रिंट करने के लिए नहीं। सेंटेंस प्रिंट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा ऐसे। अगर वर्ड प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा में, और अगर सेंटेंस प्रिंट करना है तो ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे कि पी आर ब्रैकेट आई रीड इन क्लास 5 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? ओके नाउ चलिए देखते हैं एडिशन कैसे करता है ये। एडिशन कैसे होगा, तो पहले टेक्स्ट को क्लियर कर लेते हैं सीटी करके। अब यहाँ पे कमांड है पी आर 10 + 20, प्रिंट करना है 10 + 20। क्या होगा, तो 10 + 20 प्रिंट कर रहा है। पी आर 10 + 20, 10 + 20 को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे 10 + 20 प्रिंट होके आ गया 30। क्लियर, समझ में आया? अगर हम इसमें और भी चाहें तो और बढ़ा सकते हैं +40। देखिए 10 + 20 + 40, ये टोटल करके 70 दे दिया। देखिए 40 + 30 = 70 है ना। आप जो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मीन्स कि प्लस का साइन बीच में देना पड़ेगा। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में माइनस साइन देना होगा। तो आपको लिखना होगा पी आर, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन के लिए 40 - 10, 40 - 10 30। देखिए ऑटोमेटिक 30 प्रिंट करके दिखाया। क्लियर है ना। या फिर हम लिख सकते हैं पी आर डिफरेंस 40 10, या फिर पी आर सम, अगर सम करना है तो सम लिखेंगे पी आर सम 10 + 10 and 20। फिर से देख लेते हैं पी आर सम 10 20। देखिए सम करके दिया 10 और 20 का सम दे दिया 30। इसी में हम और भी नंबर लगा सकते हैं 30 40 50 10 20 10 20 30 40 50। इन सभी नंबर्स का टोटल क्या होगा, इन सभी नंबर्स का टोटल होगा, यू डोंट से व्हाट टू डू विद दिस। अच्छा ये टोटल नंबर ऑफ ये सम जो है ये सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए है। अगर हम इसको ब्रैकेट कर दें तो ये काम कर जाएगा। Too much s, okay, I think this will work on, ये पुराना वाला वर्जन है इसलिए ऐसा है। सम कमांड सिर्फ 2 ही के लिए यूज होगा, लाइक दिस। क्लियर टेक्स्ट। तो सम कमांड सिर्फ दो नंबर्स के लिए होगा, लेकिन अगर आप प्लस करके करना चाहते हैं तो 2 से ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होगा, माइनस में आपको सिर्फ एक ही
यूज करना होगा, ऐसे नहीं माइनस माइनस माइनस। चलिए करके देखते हैं क्या हो सकता है। ये पी आर 40 माइनस 10, देखिए 40 माइनस 10 30 दिखाया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 40 माइनस 10 माइनस 10, तो आंसर आना चाहिए 20। यस, हो गया, मतलब -5, यस 15 इज वर्किंग। तो माइनस या प्लस, अगर साइन अब एक से ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको माइनस का साइन दे करके यूज करना होगा, और अगर प्लस का साइन दे के करना चाहते हैं तो जितना प्लस करना चाहते हैं प्लस का साइन देते हुए मल्टीपल्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्लियरली? नाउ चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पी आर 30 एस्ट्रिक 5, इसको एस्ट्रिक पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पी आर 30 एस्ट्रिक 5, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? द आंसर इज 150। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 150। देखिए 150 आपकी स्क्रीन पर भी ऐसे ही, आपकी बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है। और अगर 30 को 5 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसा, पी आर 30 डिवाइडेड बाई 5, देखिए स्क्रीन पर। अगर ये करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। यहां क्या सही है? यहां देखिए आपकी बुक में 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सभी चीजों को समझ पाए होंगे। रीअरेंज द लेटर्स, यहां पे आपको देखिए रीअरेंज करना है इस लेटर्स को। आप इनको अपने से रीअरेंज करेंगे, ये अपने से कमांड लिख करके ड्रॉ करेंगे। FD 100, RT 90, FD 100, 300, 90, 200 ऐसे करके फिगर बनाएंगे। इसको ऐसे टर्न करने के लिए 144 का यूज करेंगे या फिर 120 का यूज करेंगे। ठीक है, तो 120 का यूज करेंगे, RT 120, तो आपको ये फिगर बन पाएगा। यहाँ पे 120, फिर ये यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल का कमांड लिखना है रिपीट कमांड का यूज करके। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि रिपीट कमांड रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कमांड दिया हुआ है इससे क्या हो रहा है, इन चीज को स्क्रीन पे करके दिखाना है। बट अभी तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला को हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, जब स्कूल खुलेगा तब जाके हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पी आर 10 प्लस 5, पी आर 10 प्लस 5 क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ऑन स्क्रीन क्या दिखाई देगा? इसका स्क्रीन होगा, इसका आंसर होगा 15, इसका आंसर क्या होगा 25, इसका आंसर 100, और इसका आंसर आपको अपने से खोज के निकालना है। ठीक है, सो अपने से ये सारे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि पी आर 10 प्लस 5 क्या होगा। ठीक है, तो आपको उसका आंसर निकाल लेना है अपने से। 10 और प्लस 5, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 15, 50 में 25 घटाएंगे तो कितना होगा 25, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर? 5 2 10, 20, है ना? हाँ, आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ये नहीं होंगे एग्जैक्टली, बट इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा सही से, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। हो सकता है आप सही तरीके से समझ पाए, आपने सुनने में गलती या समझने में कुछ कमी रह गई होगी, तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, so this is for all today students, so keep learning, keep studying and be safe. Thank you for watching, and one more thing, have a great day and best of luck for your examination.